अगर एक्वस में है तो। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड आप बोलोगे सर HClO4, याद है कि नहीं, H2SO4, HI, HBr, HCl एंड HNO3। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस की बात करोगे तो CHOH, ओके, RbOH, याद है कि नहीं, KOH, NaOH, then you have what, BaOH twice, SrOH twice, कोई बुक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया है। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सारे सॉल्ट्स भी आ जाते हैं, ये ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। तो सॉल्ट को तुम क्लासिफाई करने जाओगे तो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन, मैंने बताया salt is classified on the basis of solubility, either they are sparingly soluble salt or they are what, completely soluble। लेकिन जो भी soluble होगा वो पूरा की पूरा आयन ही देगा। तो अब तुम 5 ग्राम AgCl वाटर में डाल रहे हो एंड यू सी के इट इज ओनली 2 ग्राम गेटिंग डिसॉल्व, तो लेकिन जो 2 ग्राम डिसॉल्व हुआ ना वो पूरा की पूरा डिसोसिएट होगा। इसका मतलब ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग। आप उसका जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द लैटिस, you will be getting it। But strong acid, weak acid, strong base, weak base, yes, उनके dissociations कम है weak की तरह, but solubility में फर्क नहीं। मतलब for example if I say 1 gram acetic acid completely soluble in water, ठीक है भाई, हो गया। क्योंकि वाटर में soluble होने का सिर्फ ये तरीका नहीं कि तुम आयंस बनाओ, there are 3 ways, either you react with water or form hydrogen bonding with water or the molecule should what, dissociate। so acetic acid hydrogen bond बना रहा है, alcohol hydrogen bond बना रहा है water के साथ में, but उनका dissociation उनकी strength पे depend करेगा। so these are weak acid, मतलब इन acid को छोड़ के बाकी कोई acid दिख रहे हैं आपको, organic acid दिख रहे हैं, inorganic acid दिख रहे हैं, weak category में डालो। इनको छोड़ के आपको जो भी base दिख रहे हैं, organic, inorganic, सब weak है। But all salts are what? Strong. This is the basic requirement for the electrolysis. You require this for electrolysis to understand electrolysis. And first of all, the most important thing is that the electrolysis is a non-spontaneous. मतलब for example, if I take this case, focus करना इधर पे. The case is electrolysis of molten NaCl ले लेते हैं, सबसे easy वाला, using platinum electrodes, electronic conductors. Electronic conductors are also called as electrodes. ठीक है, तो platinum becomes your inert electrode, मैंने ले लिया। मतलब एग्जांपल में देखो मैंने क्या लिया, I am taking molten NaCl will what, active, inactive electrodes. So now, if we consider this, 2 platinum electrode inside, आपने molten NaCl डाला है, मतलब this is the molten solution of Na plus and what, Cl minus, connecting to the 2 terminals of the battery. Obviously the negative charge anions goes to opposite electrode जिसका नाम आपने रख दिया anode, and this becomes what, your cathode। अब redox अप्लाई हो जाएगा, एकदम सिंपल है। और कैसे अप्लाई करोगे? Always at anode there will be oxidation, anox, and always at cathode there will be a reduction, right? चार्ज से याद मत रखना, चार्जेस से याद रखोगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रोजेनेसिस में जाते हो ना, तो जो आपको एनोड या पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस विल रिमेन सेम, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस कि Cl minus is going at anode, so at anode oxidation of chloride takes place। now Cl minus has how many electrons in the outermost shell? 8 ऑक्साइड कंप्लीट है। Cl माइनस है ना, एक और एक Cl माइनस आ गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब ये इंटरफेस पे जाएंगे ऑफ इलेक्ट्रोड, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल आल्सो लूज 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। नाउ दिस क्लोरीन फ्रॉम 18 इट बिकम 17, ये भी 17 हो गया, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते, ठीक है, मतलब एकदम आउटर मोस्ट पकड़ ले तो। So इस केस के अंदर क्या होगा, they will share 1 electrons and they will form a covalent bond to form which gas, and your say greenish yellow chlorine gas will be eliminated। now these electrons are left on the surface of where, anode, they will start traveling, they will start moving, and through the external circuit they will come at where, cathode। so if I say electron कहाँ से कहाँ travel करता है, तो सर electron travel करता है anode से
लेकिन not through internal circuit, because internal circuit से क्या flow करेंगे? So internal circuit से आया है और external circuit से क्या flow हो रहा है? From where? Anode. Now what will happen at cathode reduction? These Na plus ions will gain these 2 moles of electron to form what? Sodium. So यहाँ पर सोडियम का डिपॉजिट हो गया, isn't it or not? So this is how the reaction takes place at anode and cathode. So if you write down the NCR, the net cell reaction, you will write down the 2 moles of Na plus ion plus 2 moles of chloride ion from NaCl. It will get converted into 2 moles of sodium in solid state and chlorine gas in what? Chlorine in what? See, you have broken this NaCl into sodium and chlorine. This is the overall reaction on the expenditure of current. लेकिन आप इलेक्ट्रिक करंट यूज ही नहीं करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ही नहीं करोगे, तो ये रिएक्शन होने का ही नहीं है। इसका मतलब कंप्लीट केस एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो पहला केस था जो बहुत इजी है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड केस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन सेकंड केस, ये कैन आई रब दिस आउट? यू राइट इट डाउन। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का काम ये होगा कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी होने देंगे। और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड दे वोंट पार्टिसिपेट, मतलब दे वोंट अंडरगो एनी काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ऑन देयर सरफेस। एक्टिव इलेक्ट्रोड कैन अंडरगो रेडॉक्स रिएक्शन ऑन देयर सरफेस, सिर्फ करंट। दूसरे लोग उसके सरफेस पे आके रिएक्ट करें, दैट इज आयन। एक्टिव इलेक्ट्रोड ऐसा नहीं, वो खुद पार्टिसिपेट भी करेगा और इलेक्ट्रॉन करंट भी फ्लो करवाएगा। इसके लिए तो इनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज किया जाता है। सिल्वर ऑन द सरफेस ऑफ आयन, जैसा इसके लिए यूज करते हैं। प्लैटिनम है, कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन नैनोट्यूब्स है, बहुत सारे। ये रिएक्शन तो था प्लैटिनम में, तो है इलेक्ट्रॉन। प्लैटिनम में तो रियल है, रेडॉक्स आयंस का हो रहा है। प्लैटिनम में नहीं, प्लैटिनम इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड जिसपे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, समझा सबको? ये वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हाँ, एक्सटर्नल सर्किट याद रखने का। ये क्या है? ये क्या है? तो वही होता है हमारी बॉडी में भी इंटरनल सर्किट में पूरा टाइम हमारा। जब whenever you get up from your sleep, in sleep you are half dead. When you get up in the sleep, आपके रिफ्लेक्सेस स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, रिफ्लेक्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और वो क्यों होता है? नॉट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंपल्सेस हो रहे हैं, दैट इज फ्लो ऑफ व्हाट? As simple as that. And ionic reactions are also fast as compared to electronic reactions. देखो ना, आपके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट है, क्विक है। हमारे रिफ्लेक्सेस बहुत क्विक है, बिकॉज आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एज कंपेयर टू व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक। फास्ट रिएक्शंस है, दोनों फास्ट रिएक्शन। ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन स्लो चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट है, नहीं, बट दोनों अलग है। अच्छा, क्या क्लियर है सब लोग? अच्छा, नाउ इन दिस केस ध्यान से सुनो सब लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, प्लीज एवरीवन फोकस हियर। नाउ दिस टाइम व्हाट वी डू, फोकस ऑन दिस पार्ट। मतलब यहां पर मैंने अभी मोल्डन की जगह पे ना, आई एम टेकिंग एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो भी आप लोग मुझे बताओ, एक्वस NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब हियर इन दिस सॉल्यूशन यू हैव Na plus H plus Cl minus OH। एनोड पे दोनों चले जाएंगे, Cl minus OH minus। कैथोड पे दोनों चले जाएंगे, Na plus ही जाएगा। ओके, गुड। तो वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा? मतलब यू टू से एकदम सिंपल चीज है। everyone has gone through this part
अभी तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इवन इन रेडॉक्स रिएक्शन, दैट E stands for electrode potential. If I say ERED, मतलब it stands for reduction potential which causes reduction reaction, है ना? और अगर नॉट लगा दे तो आप बोलेंगे सर ये तो बन गया SR, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो इजीली रिडक्शन में जा सकता है। It has a greater tendency to undergo what? Reduction. And it's a very 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 good oxidizing agent. और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है ऑक्सीडेशन में चले जाएगा, सही है कि नहीं? undergo ऑक्सीडेशन। इसके लिए we say it is inversely proportional to what? reducing agent। ये तो तुमने पढ़ा हो। और IUPAC बोला सारा कैलकुलेशन SRP में कर, SOP में मत करो। SOP stands for standard ऑक्सीडेशन। तो ये तो आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मैं लिख दूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन इट इज अ SOP, देन इज अ ग्रेट चांस ऑफ अंडरगोइंग व्हाट? ऑक्सीडेशन। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ Na+ और H+, Na+ and H+, and if I talk about the reduction potential, मतलब अगर मैं Na+ की बात कर रहा हूँ रिएक्शन की, so अगर if I talk about the cations will go to cathode पे क्या हो जाएगा? reduction। so if I talk about this reduction here, तो अगर सोडियम रिडक्शन में जा रहा है तो it will gain electrons in aqueous media to form sodium solid, and if you check the स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर आप सोडियम का स्टैंडर्ड Na+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे तो इट इज -2.73 या 37 वोल्ट के आसपास, मतलब -2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। त्याच्यावरून रेडिएशन कमी
So, you understood this? Let me continue this, because मुझे first law का shortcut में reduction potential of sodium is found to be minus 2.73 volts. Okay? And please सब लोग ध्यान देना, कभी read करते हुए आपको difficulty कहाँ पर आएगी मैं बताऊंगा. Listen to me the difficulty. If H plus undergoes reduction, तो देखो H plus का reduction book में कैसा लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है कि water will dissociate to gives you H plus and OH minus ions. ठीक है? H plus ions will undergo reduction and forms H2 gas. सही है? तो कभी कभार टेक्स्ट बुक में ना ऐसा लिख के आता है. देखो ये ना H plus का रिडक्शन है, इस तरीके से नहीं लिखा रहेगा. टेक्स्ट बुक में they will cancel out this H plus ions and they will write down this manner. H2O plus 2 electrons gives what? H2 gas plus OH. तो स्टूडेंट्स को ना बहुत टाइम यहाँ कंफ्यूजन होता है रीड करने के लिए. देखा होगा नोटिस. तो ये कंफ्यूजन मतलब समझे ना, मैं एक एक बेसिक पॉइंट भी कवर करूंगा तुमको रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. So here in this case, if you find the reduction potential, standard reduction potential of hydrogen is what? Zero. तो अगर ये दोनों को मैंने इजीली कंपेयर कर दिया, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देखिए मुझे बता दो कि सर, according to this comparison, the reduction potential of H plus है ना, is greater than the reduction potential of what? Na plus. तो obviously sir, H plus will undergo reduction. तो कैथोड पे इस कंडीशन में H plus चले जाएगा और यहाँ से जो गैस निकलेगी that is which gas? हाइड्रोजन. अब बात आ रही Cl माइनस और OH माइनस. तो सुनना जरूरी है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट. इफ यू टॉक अबाउट अनायन, मतलब मैंने अगर अनायन की बात कर ली, which will goes to anode for oxidation. Remember, तो मेरे पास दो अनायन है, क्लोराइड. If chloride undergoes oxidation, it will form Cl2 gas. It will lose 2 electrons. And the reduction potential of Cl minus is 1.36 volt. तो भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर 1.36 वोल्ट है, तो इसका मतलब फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा माइनस 1.36. एंड इफ OH माइनस आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो अपने टेक्स्ट बुक में कैसा बताता है कि यू टेक OH माइनस आयंस, you take water, it will dissociate, it gives you H plus and OH minus ions. OH minus ions undergo oxidation. तो अभी बराबर देखना, मैं इसको कैसा बता रहा हूँ आपको. देखो ये OH minus ions है. कभी कभार इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद नहीं होता स्टूडेंट्स को, डिफिकल्टी हो जाती है. तो OH minus ions में there are how many? Suppose I'm getting 2 moles of OH minus. So 2 moles have 2 moles of electron. They will lose 2 moles of electron, isn't it or not? Now see properly. The electrons are lost, तुम इसको combine करो. अच्छा O तो मैं नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूं? इसका ब्रेकिंग. And if I write down half oxygen here, so the net reaction will be 2 moles of water. सही है? Gives you 2 moles of electron. 2 moles of water. हाँ वो कैंसिल कर देंगे हम लोग, या वो उसमें हाफ में लिख देते. 1 mole of water. ठीक है? It will cancel out, gives what? इलेक्ट्रॉन. अच्छा अभी यहाँ पर OH माइनस हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, तो अभी क्या मिलेगा हम लोगों को? कम ऑन, H प्लस प्लस वॉट, H2O प्लस वॉट, हाफ ऑक्सीजन.
सो इसमें बराबर देखो, ये जो रिएक्शन है इट इज आल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस ओनली। तो कभी कभार टेक्स्ट में वाटर के टर्म पे ऑक्सीडेशन दिखाता है और वाटर के टर्म पे ही रिडक्शन दिखाता है। तो भाई अगर रिडक्शन वाटर का हुआ तो H+ रिड्यूस हो रहा है, और अगर वाटर को ऑक्सीडाइज बताया तो OH माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्लीज अच्छा, यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपने देख लिया, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज अराउंड प्लस 0.4 वोल्ट्स, मैंने लिख दिया, ओके, 0.43 के आसपास। अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्लस 1.23 दिया, क्या दिया हुआ? मैं ये दूसरे एक्सपेरिमेंट डेटा से निकाल के बोल रहा हूँ। अगर आप प्लस 1.23 लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं, जस्ट टू सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हो क्या है। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दूं तो दैट इज माइनस 1.23 वोल्ट। अब तुम अगर कंपेयर करो माइनस 1.36 और माइनस 1.23, तुम मुझे कल एक बात बताओ कि ये दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसका है? क्योंकि तुमको मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिखाया था, एक्सपेरिमेंटल डेटा में तुमको क्या दिखाया था? प्लस 0.43 वोल्ट है ना, मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा? माइनस 0.43 वोल्ट। तो चलो मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस इज माइनस 0.43, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज मतलब यहाँ तुमको सीधा एक चीज मालूम ये पड़ जा रही है, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम योर कि इन द केस ऑफ अनायन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? सही है। तो एनोड पे कौन जाएगा? NOH माइनस जाएगा तो क्या लिबरेट करेगा? ऑक्सीजन गैस। यस, OH माइनस विल गो टू एनोड एंड इट विल लिबरेट क्लोरीन गैस। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए। सी देयर इज अ ट्विस्ट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्विस्ट। इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, सिंपल MCQs में आप इसको मार्क कर सकते। सबसे पहली बात कि सर in spite of having greater oxidation potential chloride undergoes oxidation, रूल के अगेंस्ट होने वाला, हाँ अगेंस्ट हो गया, बट ये प्रैक्टिकल एविडेंस है ना, और प्रैक्टिकल थ्योरी से हमेशा ऊपर होता है। तो प्रैक्टिकलिटी ये बोल रही है कि क्लोरीन गैस निकला है, ऑक्सीजन गैस, क्योंकि OH माइनस अगर ऑक्सीडेशन में जाता तो ऑक्सीजन गैस निकलता, बट ऑक्सीजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हाट दिस गैस इज लिबरेटेड। सर ऐसा क्यों हुआ इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेटर? मैंने बोला देखो पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो फाइंड आउट किया गया है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके एक प्योर फॉर्म में फाइंड किया, ये तो मिक्सचर। कम ऑन। सेकंड पॉइंट इज दैट के OH माइनस कम्स फ्रॉम वेयर एंड क्लोराइड इज कमिंग फ्रॉम वेयर। तो अगर आप NaCl और वाटर के डिसोसिएशन को कंपेयर करोगे तो NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, इसका मतलब देयर विल बी अ लार्ज concentration, there will be a large concentration. So large, सबसे पहला पॉइंट होगा कि भाई there will be a large concentration of Cl minus। पहली बात तो ये, मतलब Cl minus ज्यादा है, OH minus कम। ड्यूटी किसकी ज्यादा है? सेकेंड, लार्ज concentration होने की वजह से OH minus will face kinetic hindrance movement में, and this kinetic hindrance will result into over voltage. Is it into what? अब अगर OH माइनस को Cl माइनस को हटा के डिपॉजिट होना है तो ये वो पोटेंशियल नहीं लगेगा, ये पोटेंशियल नहीं लगेगा, इससे थोड़ा। तो जब तुम उस वैल्यू को इसमें ऐड करोगे तो नेगेटिव वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, 1.36 से माइनस 2 पॉइंट समथिंग चले जाएगा, इसके लिए वो डिपॉजिट नहीं हो पाता। सो मतलब बिकॉज ऑफ दीज रीजन वी कैन राइट डाउन कि Cl माइनस विल डिस्चार्ज एट व्हाट? एनोड एंड नॉट OH माइनस। ये रीजन याद रखेंगे, बहुत जरूरी है एग्जाम में ये रीजन समझने के लिए। मतलब सोचने वाली बात है ना कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ज्यादा, तो भाई इसके रीजंस क्या दिए गए? इसके रीजंस ये दिए काइनेटिक हिंड्रेंस, ये वर्ड याद रखें, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज ऑफ दिस ओवर वोल्टेज लगेगा। तो जब तुम ओवर वोल्टेज को 0.4 में ऐड करोगे
तो नेगेटिव वैल्यू 1.36 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, -2 पॉइंट समथिंग चले जाएगा, जिसके वजह से OH माइनस डिस्चार्ज। आई होप यू गेटिंग इट। क्या बात सबको समझ में आए? तो गाइस एक सिंपल चीज हमको याद रखना दिमाग में जरूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अरे ये तो ले लिया था ना पे, इसका तो टेंशन नहीं है। अच्छा तो क्या हम लोगों को दिमाग में रखना जरूरी है, ट्राई टू फोकस ऑन दिस, कि सपोज गाइस कि सपोज मेरे पास कटायन है, तो कटायन का डिस्चार्ज ऑर्डर में क्या याद रखूं सर? गोल्ड, मर्क्यूरी, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन। चलो अगर मर्क्यूरी पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आपने सर मर्क्यूरी याद भी रखा, मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम भाई, तू गोल्ड, सिल्वर और क्या ले ले, कॉपर ले, फिर कौन रहेगा H+, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है, ग्रेटर देन व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? 0। उसके बाद में यू हैव Fe2+, जो हमको आ रहा है एग्जाम में, Zn2+, ओके, Fe2+, Zn2+, An3+, जो याद रखना है। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो तुम याद करते नहीं बैठोगे और करना भी नहीं चाहिए, क्वेश्चन ही नहीं आते। अब बात समझ रहे, आएंगे नहीं क्वेश्चन उसके ऊपर। देन यू हैव दिस Mg2+, then you have this Na+, then you have this Ca2+, then you have this potassium। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी कहानी एक्वस सॉल्यूशन की है, मोल्डन की तो है ही। एक्वस सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं H+ तो होगा, तो क्या करो, खाली इतना याद करो। क्यों? रीजन, क्योंकि तुम जब एक्वस सॉल्यूशन में ले रहे हो तो बाकी सारे कटायन तो H+ के नीचे ही आ रहे हैं, और मोल्टन में तो H+ है ही नहीं, जो कटायन दिख रहा है वही तो आपको डालना है। अच्छा अनायंस में क्या याद रखोगे? अनायंस के लिए याद रखो, लेस ऑक्सीजन गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, मतलब हाइलाइट के पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं सर, तो वो पहले डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू व्हाट, वो पहले डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू व्हाट, NO3-, वो पहले डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू व्हाट, SO4-। लेकिन नाइट्रेट और सल्फेट तो कभी भी डिस्चार्ज पोजीशन में होते ही नहीं। अब बात समझेंगे? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सो अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन देख लो कि मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग क्या होगा, और पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस? सोच के बोलो। रीजन देगा, पहले मुझे बताओ एनोड पे कौन आएगा? सर यू हैव सल्फेट एंड वाटर का OH-। अरे जाओ ना दिमाग में, ये ऐसा क्या बैठ रहे हैं? आंसर दो मुझे। सल्फेट के साथ OH- तो है वाटर का, बट OH- फिर डिस्चार्ज फर्स्ट, जब भी OH- आएगा वो हमेशा क्या देगा? ऑक्सीजन। कैथोड पे कॉपर, सॉल्यूशन में क्या बच गया? H+ है, तो pH कम। समझा मैं कहा था कि इसको रिलेट कर लिया, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो भी आ जाओ भाई, pH तक के हम लोगों ने इसको कर लिया। अच्छा तो फिर ये कर लिया, तो ये बता दो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है एक्वस AlCl3, तो भाई एनोड कौन है, कैथोड पे कौन है, रिमेनिंग क्या है, और pH की पोजीशन क्या है? एक्वस AlCl3 है, एनोड के क्लोरीन गैस, H2 गैस, Al3+ है, OH-। अभी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सॉल्ट, कोई भी हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आया तो ऐसे इसको क्रैक करके निकाल लो, क्योंकि शॉर्टकट्स तुम्हारे पास है, तो पूरा थ्योरी रखने का जरूरत नहीं, बट वो ओवर वोल्टेज नहीं बोल सकते, बिकॉज इफ दे आस्क यू द conceptual question कि why OH- is not undergoing oxidation instead of Cl- is undergoing oxidation instead of OH-, so because of large concentration of Cl-, kinetic hindrance of OH- and over voltage required for the deposition of OH-। क्या ये बात सबको समझ में आई? श्योर। ओवर वोल्टेज का मतलब ये होता है कि काइनेटिक हिंड्रेंस की वजह से जब अपने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करने जाएगा किसके सरफेस पे, एनोड के सरफेस पे, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगेगा।
दैट इज द ओवर वोल्टेज चार्ज। इसमें फिर ऐड किया तो उसका ज्यादा। हाँ, जब तुम ओवर वोल्टेज ऐड कर दोगे ना तो नेट वैल्यू है ना वो -2 पे चले जाती है। तो ऑब्वियसली क्लोरीन का जो वैल्यू है वो उससे ज्यादा हो जाएगी -1.36, तो वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट भी है? ओके, आई विल क्लियर दिस अप। ओके, ये कर दूं ना मैं? This one, can I clear this up? Focus here, focus here. Everyone. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन याद रखना, जो पढ़ा दूंगा ना उसके एंड में क्रैक करके आंसर बता दो। क्वेश्चन देखो, पहले सुन लो क्या है। सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट, सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट 2.8, अभी याद रख लेना, 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एचसीपी, 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एचसीपी। सुन लो, कुछ लिखो मत, कुछ लिखो मत, क्वेश्चन है मेरे दिमाग में है और तुमने सुना है। सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट 2.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड एचसीपी, द सेम अमाउंट विल लिबरेट हाउ मच ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, सेम अमाउंट लिबरेट हाउ मच ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब इसमें जब हाँ, लेकिन इस पे थोड़ा फोकस करेंगे पहले, तो फिर मैं एक एक पार्ट इसके अंदर से क्लियर अप करके आपको उस पे लेके आता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल है भाई। ये जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, मतलब जितना आप चार्ज पास करोगे उतना रेडॉक्स रिएक्शन चलेगा, उतना कैथोड और एनोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, the amount of substance liberated or deposited at any electrode will be directly proportional to charge। जितना करंट पास, जितना चार्ज पास होगा, जितना करंट पास होगा उतने टाइम के लिए उतना डिपोजिशन होगा, उतना लिबरेशन होगा। क्या आप लोग ये समझते हैं? श्योर? ओके, तो सबसे पहले हमको फाइंड करना चाहिए चार्ज। तो चार्ज इज नथिंग बट IT, है ना, कूलम इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, एम्पीयर इनटू सेकंड। लेकिन द लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, फैराडे। सो फैराडे एक मिनट, 1 फैराडे इज नथिंग बट चार्ज ऑन, सुन लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs into Avogadro number, that comes to around 96,500 coulombs। क्या ये समझा? तो 1 farad is the larger unit of charge, the larger unit of charge। अगर मैं आपको पूछूं भाई 1 farad को डिफाइन करो तो सर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मैं आपको बोलूं इसको रीड करो, रीड दिस, इसको रीड कैसा करोगे? 1 मोल ऑफ सोडियम आयन विल एक्सेप्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 फैराडे। अब उसको ऐसा पढ़ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 96,500 कूलम्स का चार्ज है जो 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले लेगा 1 मोल। मैं क्लियर? तो रीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे ही करते हैं, मोल मोल मोल, तो उसमें इजी पड़ जाएगा। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96,500 कूलम्स। अच्छा, चार्ज खत्म होने के बाद आपको कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फाइंड कर, मतलब आपको दे देगा वैल्यूज, बोलेगा कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तूने पास किया।
So number of moles of electron is charge upon Faraday. ये नहीं बैठा ना दिमाग में कैसा है? देखो आपने कितना चार्ज पास किया? Q. चलो Q के लिए आपने समझ लिया x मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर आपको ये तो बताया ना कि 96,500 कूलम मतलब क्या हो गया? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो x क्या होगा? x will be what? Q upon length with this. तो अगर सिस्टम में पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में तुमने कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया है इससे मालूम पड़ना. Q by S, that is IT upon 96500. Oh, come on. अच्छा कभी आपको बोल दिया फाइंड नंबर ऑफ, ध्यान दो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी number of moles of electron into mole ratio. Into what? हाँ, तो कभी आपको पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बताओ. अरे रुको मैं हूँ. तो मैं क्यों इलैबोरेट क्यों कर रहा हूँ? एक एक चीज क्यों सब ब्रेक क्यों कर रहा हूँ? मैं तो डायरेक्टली फैराडे का फॉर्मूला दे सकता था ना. मैं फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट, तुमको ब्रेक करके एक साथ फिर उसको कंप्रेस कर दूंगा. इसके लिए ध्यान दो. नहीं आगे ठीक है. बारे में आप बैठ मस्ती करो. थोड़ा सा बढ़ा चाहिए ना मेरे को, ये चाहिए, सब चाहिए तेरे को. ओके ठीक है. So if they ask you to calculate, please stop it. देखो आपको जल्दी छोड़ना है, इसके लिए आपको जरा फालतू बातें मत. अभी तो मतलब एकदम हिलने भी नहीं हो रहा था. So if I say number of moles of electron, so number of moles of product is number of moles of electron into mole. तो भाई ये क्या है? मोल रेशियो. मैं आपको बता देता हूँ कि मोल रेशियो इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, upon number of moles of product upon number of moles of electron transfer. मतलब एग्जाम्पल मैंने बोल दिया Cu2+, तो Cu2+ कैथोड पे जाने के बाद इट विल एक्सेप्ट 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu सॉलिड. तो अगर मोल रेशियो यहाँ निकालोगे तो कितना प्रोडक्ट बना? समझा कैसा निकालना है मोल रेशियो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इनटू व्हाट? मोल रेशियो. मोल रेशियो ऐसा निकलेगा. तो उससे तुमको मालूम पड़ेगा कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है. और अगर हम लोगों ने ये बोल दिया फोर्थ पॉइंट में कि फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे सर मास ऑफ प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलार मास. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. मास इज नथिंग बट मोल्स इनटू मोलार मास. अग्री? तो अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया दैट मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर मास ऑफ प्रोडक्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट? एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? IT upon 96500. तो बोलेंगे सर W is equal to IT upon 96500 into what? Mole ratio into what? Molar. So this is one of the formula. But guys, एक चीज फोकस करो. मुझे एक बात बताओ कि इक्विवेलेंट मास फॉर एन एटम क्या था फॉर्मूला? मोलर मास अपॉन वैलेंस. मोलर मास अपॉन वैलेंस. एक मिनट यहीं पर आपका किस्सा खत्म कर देता हूँ. आपने क्या फॉर्मूला पढ़ के आए मैं आपको वो बताता हूँ. मुझे एक बात बताओ, कॉपर का मोलर मास कितना है? 63.5 है ना. उसका मोल रेशियो अभी निकाला हाफ. तो हाफ इंटू 63.5 31.25. अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आया दिमाग में? अब मैं पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंट मास क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. एटॉमिक मास 63.5, वैलेंसी 2 लिया मतलब कितना हुआ? 31.5. तो एक्चुअली में ये जो पूरा पार्ट होता है ना, दिस इज केमिकल इक्विवेलेंट. जैसे इक्विवेलेंट मास, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ के कि W is equal to E इक्विवेलेंट मास अपॉन F 96500 into I into T. समझा कहां से आया ये फॉर्मूला? तो यहां से लोग नहीं निकाला है फॉर्मूला. When you calculate each and, तो मैंने आपको हर एक स्टेप बताया. भाई कुछ में से कुछ भी पूछा तुमको आना चाहिए फाइंड करने के लिए. अच्छा सेकंड थिंग, E by F. E stands for chemical equivalent.
अगर हम लोग E by F को पकड़ते हैं तो केमिकल इक्विवेलेंट को आपने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड किया चार्ज, दैट इज इक्वल टू Z। ये भी आपने पढ़ा है, Z इज कॉल्ड है Electrochemical. हाँ इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, बट गाइस इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट मतलब सिर्फ E, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला मतलब उसने क्या मतलब खाली ये पूछ लिया कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। अब समझो वो क्या फाइंड हमने बोल रहा पता है Z। तो मतलब यहाँ पर मैं फॉर्मूला तो ऐसा लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Z। ठीक है, ये दो फॉर्मूले समझ में आए। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि प्लीज 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 स्टॉप, एक बात बताओ, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने दो कंटेनर्स लिए हैं, एक के अंदर मैंने डाल, प्लीज फोकस हियर, एक के अंदर डाल दिया मैंने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 और दूसरे के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, और इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो डिप किया है मैंने, उनको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देख लो, सीरीज में कनेक्ट कर दिया मतलब क्या हो गया, अगर मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया मतलब इनके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम। मतलब ये दोनों के अंदर जो Q है दैट विल बी व्हाट, सेम, चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज सेम है तो थोड़ा सोच के बताना, इस केस में इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, H नहीं होगा, कॉपर होगा। और इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, चलो मैंने 1 फैराडे चार्ज पास किया, दोनों में जाएगा 1 फैराडे। तो 1 फैराडे कितना कॉपर डिपॉजिट, अभी पढ़ाया था, कैसा पढ़ाया सब, 1 कॉपर के लिए 2 फैराडे लग रहे हैं, तो 1 फैराडे विल डिपॉजिट हाफ ऑफ कॉपर, हाफ ऑफ कॉपर मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 का आधा, सही है, मतलब 1 फैराडे विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अच्छा मुझे बताओ Ag प्लस का रिडक्शन रिएक्शन कैसा लिखेंगे, Ag प्लस 1 फैराडे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ag, मतलब 1 Ag प्लस Ag के लिए 1 फैराडे, Ag का एटॉमिक मास 108, तो 108 ग्राम ऑफ Ag के लिए 1 फैराडे लग रहा है। अच्छा अगर मैं आपको पूछा इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag क्या, तो आप बोलेंगे 108/1। इसका मतलब ये है कि आप जो भी चार्ज यहाँ पास करोगे तो वहां पर कॉपर का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर सिल्वर का इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा है। तो कैन आई राइट डाउन हियर कि अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, weight of substance A upon weight of substance B will be equivalent mass of A upon, क्यों भाई, weight is equal to IT upon 96.00 into equivalent mass। अरे यार, तो weight of 1 upon weight of 2, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, equivalent mass of 1 upon equivalent mass of what, फैराडे सेकंड लॉ। या कभी पूछा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकाल, तो सिंपल है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल तो मेरे पास है सर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, हाँ बट सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या रहने वाले, सेम, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी मोल रेशियो ऑफ A अपॉन व्हाट, सही है। सो व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे फर्स्ट लॉ, आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि 1 फैराडे इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, दैट इज 96,500 कूलम। आल्सो 1 फैराडे विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस 1 फैराडे विल डिपॉजिट, एंड इक्विवेलेंट मास इज नथिंग बट व्हाट, हम लोगों ने सिंपल एलिमेंट्स के लिए पढ़ा है, इट इज नथिंग बट व्हाट, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंस बैलेंस, सही है। तो फॉर मोनोवैलेंट एटम, डाइवैलेंट एटम, ट्राइवैलेंट एटम, अगर मैं आपको पूछूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में 1 फैराडे कितना डिपॉजिट करेगा, तो आप बोलेंगे सर एल्यूमिनियम
Aluminium का atomic mass is 27. Valence is what? 3. 27.3 is what? 9. मतलब 1 Faraday will deposit 9 gram of aluminium. So can I write down कि 1 Faraday will deposit 1 mole of monovalent atom, सही है? And 1 Faraday will deposit half mole of divalent atom, 1/3 moles of trivalent. ठीक है? Is it fine? Also, अगर मैंने आपको ये रिलेशन बना के दिया गैस के बारे में, जो ज्यादातर जो गैस के बारे में वो पूछते हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. चलो, अगर मैं ध्यान दो मैं इनके ना पहले मोलार मास लिखता हूँ. तो ये 2 ग्राम है, ये 71 ग्राम है, ये 32 ग्राम है. सही है? अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो ये 1 मोल हो गए. अच्छा, अगर मैंने इनके वॉल्यूम और एसटीपी की बात किया तो आप बोलेंगे सर 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, 22.4. और अगर मैं बोलूँ चले भाई काम कर, इक्विवेलेंट मास लिख, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी. आप बोलेंगे सर इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 35.5. एटॉमिक मास है 35.5 अपॉन 1, वैलेंसी इज 1. ऑक्सीजन एटॉमिक मास 3 डिवाइडेड बाय 2, वैलेंसी इज 2. तो क्या होगा? अरे लेकिन 1 ग्राम इनका हाफ मोल होता है. ये हाफ मोल है क्लोरीन का. 8 ग्राम ये 1/4 मोल ऑक्सीजन है. 32 ग्राम 1 मोल है, तो 8 ग्राम 1/4 मोल है. मतलब 8 ग्राम इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन. दैट आल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 1/4 मोल. इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एचटीपी लिख रहा हूँ तो हाफ मोल के लिए 11.2 लीटर, बीएनक्यू 11.2 लीटर, ये कितना होगा? 5.6 लीटर, है ना? तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ 1 फैराडे से लिख दे. तो स्टूडेंट्स को खाली ये याद रखना. तो मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको क्या बोला था पता है? कि 2.8 लीटर, तो 2.8 लीटर मतलब 5.6 का हाफ, मतलब सर हाफ फैराडे हुआ. आपने फैराडे पकड़ लिया. पूरा लिंक वही है. मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि ऑन द पैसेज ऑफ सर्टेन चार्ज 2.8 liter of oxygen is depositing at anode. The same charge will deposit how much gram of magnesium? How much gram of magnesium? So 2.8 liters. तो 5.6 1 फैराडे होता है. तो 2.8 मतलब कितना हो गया? हाफ फैराडे. Sir, 1 Faraday will deposit half of divalent, magnesium divalent है. Half Faraday will deposit 1/4, 24 का 4, 24 divided by 4. ऐसा आंसर. क्या आपको ये समझ में आया? नेक्स्ट टाइम पूरा रिवाइज कर आएंगे. क्या आगे बढ़ता हूँ? इजी लगा यहाँ तक के? श्योर. नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे और आगे. चलो टेक केयर गाइस. या बाय. Thank you.
Not waiting.
ह्याच्यापेक्षा better. म्हणजे जीजू बावळट. अरे पण दादी is different. दादी फक्त पेटरची साईड घेतली ना तसं नाहीये. दाजी म्हणजे जीजू. दाजी म्हणजे पण दादी आता थांब. तुझ्या आत्याच्या हसबंडला माझे बाबा दाजी म्हणजे तुझ्या म्हणजे त्या बाबांच्या बहिणीचा नवरा ना बावळट.